RBI's interest rates. Now, interest rate, if I talk about economy, so we use a rate called policy rate, and that policy rate का नाम क्या है? It is called repo. So what is the full form of repo rate? Repurchase agreement. So what is repo rate? Repo rate is, you can assume it's like a base rate of the economy, wherein every rate, whether lending rates or deposit rates or saving rates, every rate has a direct correlation with this rate. Repo rate technically इसका मतलब ये है, it is a rate at which RBI lends to the banks for short term period, or they discount their securities at a rate at which they discount their securities. So we'll try to understand. तो बैंक को जो पैसा मिलता है RBI के द्वारा, that interest rate is very important because that interest rate will decide the any rate in the economy. Why it has been in news? Because in last, you can say 1.5 years, the world has been witnessing rising interest rates. World, I mean to say, rise in Fed rates. Fed rates nothing but repo rate of USA. Rise in interest rate in EU, in European Union. And the reason has been due to inflationary trend. वहां पर महंगाई बढ़ी हुई है. Inflationary trends. For example, if I give you the data, you'll be surprised to know that in the last financial year, USA का जो inflation था, महंगाई था, that was in 22-23. Any guesses? It was 7.1%. Okay, it was 7.11%. That was the inflation of USA. Similarly, EU, European Union faced 8 to 11% inflation in the same phase, in the same period, where the long-term average of the inflation has not been more than 2 to 3%. तो महंगाई जहां 2-3% होना चाहिए, अगर वहां 11% हो जाए या 8% हो जाए, तो इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न. The question comes that how these interest rates, rising interest rate, whether in European countries or for that matter in any other country, how it is impacting India. That is a question that you should be asking. कि भी वहां पर interest rate बढ़ रहा है तो उससे हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए and how does it matter? Try to understand. We live in a world where there has been an integration and coupling of the economies across the world. World में आपस में economies का coupling हो रखा है. Coupling means there is a movement of capital from one country to another. There is a loosening, or you can easily capital can do excursion from one country to another country. वहाँ से पैसा इंडिया में इन्वेस्ट हो रहा है, यहाँ से वहाँ इन्वेस्ट हो रहा है. Indian investor can easily invest in American market and vice versa. American investor can invest in Indian market. तो वहाँ की पॉलिसी हमें इम्पैक्ट होगी similarly, and our policy might impact them as well. But because there are bigger economies, it is more that their policy might impact us. अब mainly US is one country which has been impacting India's concern. तो अब तो एक तो ये हो रहा है, वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है. अब वहाँ पे जब इन्फ्लेशन बढ़ता है या किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ता है, सो देयर सेंट्रल बैंक दे ट्राई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं. नाउ क्वेश्चन कम्स, हाउ डू यू कंट्रोल द इन्फ्लेशन? बाय इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट. मोमेंट यू रेज द इंटरेस्ट रेट, द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग गोज अप. The money is not easily available. Money is costly. So people will start, it will impact or it will deter investments. वो investment नहीं करेंगे because money is costly now. And because money is costly, you will not invest, and that will have a direct impact on the inflation of the economy because demand कम हो जाएगा. So people will not invest, demand will subside, and inflation will be controlled. So that is the common approach which economies follow as per the monetary school of thought. उनका मानना है कि सब कुछ, everything is a function of money. They believe that everything, every problem in the economy is money. More money
or less money depending on the situation. So across the world 1970s के बाद we have witnessed a strong role of money and central bank policies deciding how economies should move or or should change. Policies कैसे बदलनी चाहिए. Coming to India, issues laid with India. Persisting food inflation. हमारे यहां भी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है. Okay, now this rise in repo rates, rise in lending rates, lending or borrowing rates. There is high cost of capital. And high cost of capital क्या करेगा, आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को डेटर करेगा. इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द इन्वेस्टमेंट. ओके, सो पीपल विल नॉट इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी बिकॉज कैपिटल इज कॉस्टली. पैसा महंगा है. बैंक विल गिव लोन एट द हायर इंटरेस्ट रेट. नो क्वेश्चन कम्स दैट व्हाट आरबीआई डज. अब फेड रेट अगर बढ़ता है तो इंडिया में क्या होता है. इफ द फेड रेट गोज अप, यूएसए में अगर फेड रेट ऊपर जाता है तो हाउ डज इट इम्पैक्ट आवर करेंसी. हमारी करेंसी कैसे इंपैक्ट करता है. फर्स्ट, व्हाट मेजर्स आरबीआई विल टेक टू काउंटर दैट, एंड व्हाट विल हैव द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दोस इन आवर इकोनॉमी आल्सो. अगर फेड रेट बढ़ता है, मान लो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, राइट, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन. नहीं, वहां पे बढ़ाया तो इंडिया में एफडीआई कम होगा. चलिए, वन वे दैट मनी विल कम, बट देयर विल बी कैपिटल आउटफ्लो टू दैट कंट्री बिकॉज वहां शॉर्टेज ऑफ कैपिटल हो जाएगा, वहां पैसा कम हो जाएगा. नाउ द इन्वेस्टर्स हु हैव इन्वेस्टेड इन इंडियन मार्केट, दे विल स्टार्ट मूविंग टू यूएसए. क्यों? क्योंकि अब वहां पे पैसा महंगा हो गया है. सो दे विल गेट बेटर इंटरेस्ट रेट. दे विल गेट बेटर इंटरेस्ट रेट देन. अभी हो सकता है इंडिया में 1% ज्यादा होगा मे बी, बट दे फील दैट it is better to invest in that country because it is relatively a bigger economy and maybe more stable economy. So the capital flight happens. इंडिया में जो इन्वेस्टेड पैसा होता है, मार्केट्स में होता है, वो पैसा वहां मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. एंड दैट काइंड ऑफ इम्पैक्ट्स आर डेप्रिसिएशन. हमारी करेंसी कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है. और जब करेंसी गेट्स वीकेंड, एंड दैट इज वेयर आरबीआई विल हैव टू इंटरवीन. कल आपको मैंने समझाया था दैट हाउ द एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इज बीइंग डन बाय द आरबीआई. तो वही है. तो यहां पर ओवरऑल राइट नाउ वी लिव इन अ एरा वेयर द इंटरेस्ट रेट्स ऑन एन एवरेज हैव गॉन अप. गॉन अदर डेज व्हेन इंटरेस्ट रेट वर वेरी लो. एक ऐसा फेज था 2010 में 12 में वेयर इंटरेस्ट रेट्स इन कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज वर ऑलमोस्ट नियर जीरो. यानी आपको 0% पे लोन मिल रहा है. अभी वहां इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, एंड द रीजन इज ऑफ कोर्स वहां पे महंगाई हो रही है, तो वो लोग पैसा अपना महंगा कर दिए हैं. बट दैट बिकॉज देयर इज अ कपलिंग ऑफ इंडियाज इकोनॉमी विद देयर इकोनॉमी, तो उनके जो डिसीजन होते हैं वो हमें भी इंपैक्ट होते हैं. वो इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ाते हैं, तो इंडिया में जो है इंडियन गवर्नमेंट विल आल्सो हैव टू टेक द सेम थिंग. तो एक तो हमारा भी अपना इन्फ्लेशन है, देयर इज अ डोमेस्टिक रीजन एट आवर प्लेस आल्सो, तो हम लोग उसलिए भी बढ़ा रहे हैं. करेंसी जब डेप्रिशिएट होता है, देन वी हैव टू यूज आवर फॉरेक्स टू मैनेज द एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी. एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होगा तो हम करेंसी के थ्रू एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करते हैं. ओके, सो ओवरऑल these are the, so there is a strong relation between interest rates, food inflation or what is happening globally in the economy. तो आरबीआई ने जो है इंटरेस्ट रेट को स्टेडी रखा है. स्टेडी क्यों रखा है? बिकॉज देयर हैज बीन इन द लास्ट फ्यू मंथ्स इकोनॉमी हैज रिवाइव्ड और हैज डन रिलेटिवली बेटर. इन्फ्लेशन जो लास्ट ईयर 7% था यूएस में, अभी वो 3% पे आ गया. देयर इकोनॉमी इज स्टेबलाइजिंग, बट स्लो डाउन भी दिख रहा है. लास्ट ईयर जो ग्रोथ था वो इस साल ग्रोथ उससे कम है. दिस ईयर वी यूएस इकोनॉमी इज एक्सपेक्टिंग ग्रोथ रेट ऑफ 1.5%. लास्ट ईयर इट वाज 2.3%. तो कहने का मतलब है कि उनकी इकोनॉमी भी स्लो डाउन हो रही है, बट ओवरऑल इंडिया इज रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड. उसके भी बहुत सारे रीजन है कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत स्टेबल हो गया है रिलेटिवली. इन स्पाइट ऑफ द कोविड सिचुएशन दैट इंडिया फेस्ड, आवर मार्केट्स हैव रिलेटिवली डन वेरी वेल. देयर वाज अ वेरी ब्रीफ एंड टेम्पररी you can say volatility in the market during the COVID in the beginning, but बाद में मार्केट काफी हद तक स्टेबलाइज हो गया है.
तो आवर फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिलेटिवली एंड ऑल्सो आरबीआई हैज मेड श्योर कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो सस्टेन रहे, बराबर रहे, वो बढ़े ना, बिकॉज अगर बढ़ेंगे तो फिर वही होगा, हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा, लोन महंगा हो जाएगा, बिजनेस ग्रोथ विल बी इम्पैक्टेड बिकॉज इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। उसमें दो व्यू हैं, एक व्यू ये है वो कहता है दैट आरबीआई शुड मे बी प्रोबेबली इंक्रीज इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बिकॉज, बट हमारा इन्फ्लेशन भी 5% के आसपास है, सो आरबीआई इज मोर बुलिश ऑन द, बुलिश मतलब कि वो इमेजिन कर रहे हैं कि इकोनॉमी अच्छा ग्रो करेगा फ्यूचर में, बुलिश का मतलब बुल, मार्केट विल ग्रो, तो आरबीआई इज मोर बुलिश। तो इंटरेस्ट रेट हमने स्टडी रखा है, डाउन तो कर नहीं सकते हैं बिकॉज डाउन करेंगे तो उसका तो इंडिकेशन ही नहीं है, बट एटलीस्ट अप नहीं करेंगे। तो सो देयर इज अ कोरिलेशन। तो इस टॉपिक को हम इस तरह समझ सकते हैं दैट अक्रॉस द वर्ल्ड central banks are been trying to manage inflation and thereby they are taking a very cautionary monetary policy approach where inflation वहाँ stabilize हो, but that impacts India also because capital outflow होता है, but our own domestic factors also there। तो एक आपको बस इतना याद रखना है कि RBI has been able to take decisions based on the stability of the economy। economy आज stable है and thereby RBI feels that steady interest rate should be taken, we should not increase interest rate anymore। इतना ही आपको दिमाग में रखना है। ओके हाँ रुपये में सी देयर इज अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, गोल्ड भी यूज कर सकते हैं। सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है, यू आर यूजिंग योर ओन करेंसीज। तो फॉरेक्स एक्सचेंज में करेंसी का एक्सचेंज होता है, डॉलर टू रुपी, रुपी टू डॉलर। अब मान लो वहाँ डॉलर का डिमांड ज्यादा है, लेट्स से बिकॉज मे बी इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग वेल, सो रुपी इज अप्रिशिएटिंग, सो बाय दैट वे हमारे पास रुपी प्रिंट करने की कैपेसिटी है, ठीक है, और उनको डॉलर, उनको रुपी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब डॉलर खरीदना स्टार्ट कर देंगे बाय गिविंग आर रुपी। सो हमको हमारा फॉरेक्स का फायदा मिलता है बिकॉज सो हमारी जो करेंसी स्ट्रांग होती है, वी कैन परचेज डॉलर विद आवर ओन रुपी बिकॉज देयर इज डिमांड फॉर रुपी। या उल्टा होगा, वहां पर डॉलर का डिमांड ज्यादा है तो हम अपने फॉरेक्स से हम पंप करेंगे, विल सेल डॉलर्स सो दैट वी स्टेबलाइज इट। तो वो, और इसीलिए उसमें आप देखोगे बाई और सेल रेट अलग अलग होता है, देयर इज अ डिफरेंट बाई एंड सेल रेट। सो देयर इज अ होल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंटरनेशनली विच ऑपरेट्स एंड दे मेनली डील इन द दीज करेंसीज। उसमें डॉलर सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड करेंसी है, ठीक है। क्लियर हुआ? एनी कंफ्यूजन? आपको एक मैक्रो इकोसिस्टम समझना है, इकोनॉमीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर इंटरलिंक्ड। इंटरेस्ट रेट अगर अमेरिका में है तो इंडिया को इंपैक्ट करेंगे, हमारे उतने उनको इंपैक्ट नहीं करेंगे, बट उनके हमारे ज्यादा इंपैक्ट करेंगे बिकॉज इंडिया इज अ नेट रिसीवर ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दोज कंट्रीज। इंडिया इज नॉट द नेट इन्वेस्टर, इंडिया इज नेट रिसीवर। तो ये जो है रियलिटी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल, बट ओवरऑल देयर इज अ फाइनेंशियल stability and steady interest rate। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? हाउ मेनी यू? एवरीबॉडी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हर्ष समझ में नहीं आया? आया? डिड यू अंडरस्टूड? यशिका, सोनी, क्लियर? अंडरस्टूड? क्वेश्चंस इसी पे आएंगे इन प्रीलिम्स, यू विल गेट क्वेश्चंस directly based on such concepts।
So if वहाँ पे currency strong होगी तो how will impact us? If dollar gets stronger, how will impact rupee? If rupee gets stronger, how it will impact our own trade or this thing? If there is some problem in American economy, जैसे अभी वर्ल्ड वाइड में जैसे यूक्रेन क्राइसिस है, सो यूक्रेन क्राइसिस में एक नया टर्न ले रहा है वेयर वॉर फटीग हैज काइंड ऑफ कम इन. अभी कितने दिन लड़ाई लड़ोगे? दूसरा क्या है कि Ukraine was making advances last year, but now those advances have been repulsed by the Russian forces. Also, countries like USA और ये सब में चीजें बदल रही हैं. उन्होंने कहा यार अब थक गए, कितना एड दे तुमको, बहुत हो गया. रशिया इज ऑल्सो लुकिंग एट, हाँ अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए. तो ये वॉर 1.5 साल से चल रहा है, तो उस पर भी अभी आएंगे. क्लियर हुआ? शुड आई मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े एवरीबॉडी? हाँ फरदीन बताओ भाई, वो कह रहा है मैं भी क्लास में हूँ, है ना. हाँ बताओ, समझ में आया? चलो ओके.